નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથીના પાઠ નંબર 1 પત્ર એવં ડાયરીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોમાં જોવાના છે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથીના બધા જ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ મુકાઈ ચૂક્યા છે। તો આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે। ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથીના પાઠ નંબર 1 પત્ર એવં ડાયરીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। સર્વપ્રથમ અહીંયા તમે જોશો તો સારાંશ તમને આપવામાં આવેલો છે। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 1 અ सही विकल्प के सामने बॉक्स में सही का निशान कीजिए। में पहलू, पत्र लिखने वाले का पता किस ओर लिखा जाता है? तो जवाब आवशे बाई ओर। तो આપણે બાઈ ઓરની સામે ટીક કરીએ। બીજું, अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर खाली जगह पत्र लिखा जाता है? तो जवाब आवशे कार्यालयी पत्र। तो એની સામે આપણે ટીક કરી દઈએ। ત્યાર પછી ત્રીજું, स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में पत्र लिखा जाता है? तो એમાં જવાબ આવશે कार्यालयी पत्र। चौथું, डायरी लेखन के लिए कौन सी विशेषता सही है? तो એમાં જવાબ આવશે वास्तविकता। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પાંચમું, पत्र लेखन के लिए कौन सी बात सही नहीं है? तो જવાબ આવશે पत्र अधिक लंबा होना चाहिए। તો એની સામે આપણે ટીક કરી દઈએ। ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ તો ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એક જબરજસ્ત એપ્લિકેશન આપણે લોન્ચ કરેલી છે। આ એપ્લિકેશનની અંદર તમે ધોરણ 3થી 12ના બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની પીડીએફનો અભ્યાસ કરી શકશો। જેમ કે દરેક પાઠની સમજૂતીના સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન, હાલમાં તમે જે અભ્યાસ કરી રહ્યા છો તે સ્વાધ્યાયન પોથી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, એકમ કસોટીની ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રથમ, દ્વિતીય અને વાર્ષિક પરીક્ષાઓના પ્રશ્નપત્ર અને બીજા તમામ પ્રકારના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની પીડીએફનો અહીંથી તમે અભ્યાસ કરી શકશો। તો જરૂરથી તમારા દોસ્તો, મિત્રો, સગા સંબંધીઓ જેઓ પણ ધોરણ 3થી 12માં અભ્યાસ કરતા હોય તે દરેકને આ એપ્લિકેશન વિશે જરૂરથી જાણ કરજો। એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1 બ, पत्र लेखन के संबंध में सही जोड़ मिलाइए। तो एमा पहलू है, मित्र को पत्र लिखते समय क्या संबोधन होगा? तो एनी सामे जवाब आवशे 7 नंबर, प्रिय मित्र। बीजू, जन्मदिन की बधाई पर लिखा गया पत्र। तो एने 4 नंबर साथे जोड़ीशू, बधाई पत्र। त्रीजू, प्रार्थना पत्र में संबोधन क्या होगा? तो एने आपणे 5 नंबर साथे जोड़ीशू, मान्यवर महोदय। पुस्तक विक्रेता को लिखा गया पत्र। एने आपणे 1 नंबर साथे जोड़ीशू, व्यावसायिक पत्र। गुरुजी को लिखे पत्र में समाप्ति पर क्या लिखा जाएगा? तो एने आपणे जोड़ीशू 2 नंबर साथे, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 1 ક, पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 1 से 5 पर दिए गए पत्रों के आधार कोष्टक में उत्तर लिखिए। पत्र का प्रकार, एમાં निमंत्रण पत्र। तो एમાં संबोधનમાં આવશે सप्रेम स्मरण। किसको लिखा? तो स्नेहल को। किसने लिखा? तो साहिल शाह को। किसके बारे में लिखा गया? तो जन्मदिन के बारे में लिखा गया। पत्र लिखने वाले का पता? तो 90 बुधनगर सोसायटी, लिंबायत, सूरत। ત્યાર પછી બીજું છે બધાઈ પત્ર, સંબોધન। તો એમાં આવશે સપ્રેમ સ્મરણ। किसको लिखा गया? तो कि साहिल को। किसने लिखा? तो स्नेहल ने। किसके बारे में लिखा गया है? तो सालगिरह के बारे में लिखा गया है। पत्र लिखने का पता? तो અહીંયા આવશે શાંતિ સદન, રાવપુરા, બડોદા। ત્યાર પછી ત્રીજું, આશ્વાસન પત્ર। તો सप्रेम स्मृति, जागृति, अवनी। खेल महाकुंभ के बारे में लिखा गया था અને એડ્રેસ જે છે તે આપેલું છે માતૃછાયા, સ્ટેશન રોડ, કાલુપુર, અમદાવાદ। ત્યાર પછી પ્રાર્થના પત્ર, એમાં જે તમે જોશો તો આદરણીય ગુરુદેવ એવું સંબોધન આપણે કરી શકીએ। કોણે લખેલો છે? તો શ્રી આચાર્ય મહોદય। કોને લખેલો છે? તો કે મનોજ પટેલને। અને ત્યાર પછી જોશો તો છુટ્ટી કે બારે મેં लिखा गया है પત્ર, અને એનું સરનામું છે દેસાઈ ફલિયા, ભાવનગર। ત્યાર પછી પાંચમું અનુમતિ પત્ર છે, એમાં સંબોધન આવશે સાદર પ્રણામ, પૂજ્ય પિતાજી, રમેશ, અને प्रवास के जाने के बारे में लिखा गया है। प्रवास में जाने के बारे में। અને એડ્રેસ જે છે તે આપેલું છે જીવન ભારતી છાત્રાલય, સ્ટેશન રોડ, દાહોદ। ત્યાર પછી છે કાર્યાલયી પત્ર, એમાં માન્યवर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय सुरेश भाई म परमार। गंदगी के बारे में लिखा गया है महानगर पालिका, बड़ौदा। व्यावसायिक पत्र, ए महोदय, व्यवस्थापक भवदीप प्रीति शाह। पुस्तकें भेजने के बारे में लिखा गया है श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड। ચાલો ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2 અ,
प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमा पहलू वीपीपी का मतलब क्या होता है? तो जो ये उत्तर वीपीपी यानी कि वैल्यू पेएबल पोस्ट, इसका उपयोग आमतौर पर उन कंपनियों द्वारा किया जाता है जो कैश ऑन डिलीवरी पदाधित के आधार पर उत्पादन बेचती हो। ત્યાર પછી બીજું, पत्र लेखन के लिए दो महत्वपूर्ण बातें लिखिए। तो पत्र लेखन के लिए दो महत्वपूर्ण बातें नीचे दी गई है। पहलू, पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए। ત્યાર પછી ત્રીજું, पत्र दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं? तो आजकल पत्र डाक, कुरियर और ईमेल के माध्यम से एक दूसरों तक पहुंचते हैं। चौथों, पिन कोड नंबर लिखना जरूरी, बहुत जरूरी क्यों है? जो ये उत्तर, अगर पत्र या किसी डाक में पते के साथ पिन कोड लिखा होता है तो उसका सही गंतव्य तक जल्दी पहुंचना सुनिश्चित हो जाता है। 6 अंकों के पिन कोड में पहला अंक एक खास क्षेत्र या राज्य को दर्शाता है। दूसरा एवं तीसरा अंक मिलकर उस क्षेत्र को दर्शाता है जहां वितरण करने वाला डाकघर स्थित है। ત્યાર પછી પાંચમું, पिन नंबर का मतलब क्या होता है? आपके गांव का पिन नंबर लिखिए। तो पिन कोड का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड है। इसके हर नंबर का खास मतलब होता है जो कि संबंधित क्षेत्र, जिले और डाक खाने से संबंधित होता है। मेरे गांव का पिन नंबर 395006 है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 ब, डायरी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एમાં પહેલું, डायरी के लिए हिंदी में किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बीजो सवाल, डायरी कितने कितने दिनों की लिखी जाती है? तो डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा तो मासिक आदि दिनों की लिखी जाती है। ત્યાર પછી ત્રીજું, डायरी लेखन करते समय किन किन बातों से बचना चाहिए? तो डायरी लिखते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। चौथों, डायरी लेखन में किन बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए? तो डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना का तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। पांचवं, डायरी और आत्मकथा में क्या अंतर है? डायरी हर रोज लिखी जाती है, आत्मकथा जीवन में एक बार लिखी जाती है। डायरी में रोज की छोटी मोटी बातें लिखी जाती है, आत्मकथा में जीवन के बड़े प्रसंगों को दर्शाया जाता है। डायरी से हम क्या जान सकते हैं? डायरी से हम जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी जान सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 क, एमा पहलू, अगर आपको मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को एसएमएस द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो आप क्या लिखेंगे? उत्तर, मेरे प्यारे रामू, अंतर विद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ। अपनी ओर से मैं टाइटन की घड़ी भेज रहा हूँ। अब तो पार्टी में ही मिलेंगे, अभिनंदन, तुम्हारा ही निखिल। ત્યાર પછી બીજું, आपने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया? यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो आप क्या लिखेंगे? तो सर्वप्रथम तो આપણે એડ્રેસ લખવું પડશે, પ્રેમકુંજ, સ્ટેશન રોડ, अहमदाबाद, 20 नवंबर 2013। प्रिय अविनाश, इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था, इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य प्रातःकाल व्यायामशाला जाता था। यहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था। अपराह्न में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता और 8 बजे पिताजी के साथ घर लौटता था। रात को दूरदर्शन देखता था या बहन के साथ कैरम या चेस खेलता था। इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए इसका पता ही न चला। तुम्हारा मित्र सौरभ। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3 અ, प्रारूप के आधार पर स्वास्थ्य अधिकारी को शिकायती पत्र लिखिए। तारीख આપણને આપેલી છે 20 मई 2011। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगरपालिका बड़ौदा। ત્યાર પછી સંબોધન આવશે, मान्यवर। सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है, पास के कूड़ेदान में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिनों से तो यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई म, परमार, गायत्री मोहल्ला, बड़ौदा। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3 બ, बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। तो सर्वप्रथम तो આપણે અહીંયા એડ્રેસ લખવું પડશે, 25 આશાદન,
महात्मा गांधी मार्ग राजकोट। ત્યાર પછી તારીખ आदरणीय गुरुवर कक्षा 8 ब। कल शाम मुझे जोर की ठंड लगकर बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा। स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। अतएव आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। इसी बीच मेरी पढ़ाई को जो नुकसान होगा मैं स्वास्थ्य होते ही उसकी पूर्ति कर लूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य महिपाल रांदेरिया कक्षा 8 ब। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 क। ग्रीष्म की छुट्टियों में अपने मित्र को अपने गांव आमंत्रित करने हेतु पत्र लिखिए। 186 वालम नगर, सीमाड़ा गांव, कैनाल रोड, सूरत, पिन कोड 395006। प्रिय मित्र, आशा है कि यह पत्र तुम्हें स्वस्थ और खुशहाल हालत में पाएगा। मुझे खुशी है कि हम ग्रीष्म की छुट्टियों को बिताने के लिए तैयार है और मैं तुम्हें अपने गांव में आमंत्रित करना चाहता हूँ। गांव का मौसम इस समय बहुत ही सुहावना होता है और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य ने मेरा दिल छू लिया है। गांव में हमारे लिए कई रोचक गतिविधियां हैं जो हम एक साथ कर सकते हैं। हम घास के मैदान में, खेतों में चल सकते हैं, गांव के आसपास के पहाड़ी इलाकों में ट्रैकिंग कर सकते हैं और स्थानीय बाजार में शॉपिंग कर सकते हैं। कृपया मुझे बताएं कि तुम कितने दिनों के लिए आ सकते हो ताकि मैं तैयारी कर सकूं। आशा है कि तुम इस प्रस्ताव को स्वीकार करोगे और हम मिलकर ग्रीष्म की छुट्टियों को यादगार बना सकेंगे। ध्यान रखना, आपका दोस्त, तुम्हारा दोस्त ओम। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4। निम्नलिखित विषय पर डायरी लिखिए। એમાં પહેલું છે अपने किसी एक दिन के अनुभव का विवरण कीजिए। तो જોઈએ આપણે અનુભવ। अहमदाबाद अक्टूबर 2013। कल 16 अक्टूबर थी। नवरात्रि का पहला दिन था। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा। वाद्यों की मधुर धुनें कानों में रस घोलेंगी। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर, क्या सब कुछ अंबा मैया पर छोड़कर निश्चिंत हो गया। चलो ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજું, पाठशाला में आज का दिन। तो 7 अगस्त 2010 जामनगर। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5। निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। आज दिनांक 10 अगस्त 2011। रात को नींद नहीं आ रही थी। खुशी का ठिकाना न था। कल सुबह हो जाए इसका इंतजार था। स्कूल से सैर जाने के आनंद में कल्पना करते करते मुझे नींद आ गई। बड़े सवेरे 4 बजे अलार्म बजा और मम्मी की आवाज़ आई, राकेश उठो, 4 बज गए। मैं आनंद एवं उत्साह से उठा। मन में डर भी था कि मास्टर जी डांटे नहीं। स्नान आदि से संपन्न होकर स्कूल पहुंचा। सब साथी आ पहुंचे थे। मास्टर जी ने सबको बस में बिठाया और हम सैर के लिए निकल पड़े। तो જોઈએ આપણે એનું ગુજરાતી, એનું ભાષાંતર, એનું અનુવાદ કંઈક આ પ્રમાણે થશે। આજ તારીખ 10 ઓગસ્ટ 2011। રાત્રે ઊંઘ આવતી નહોતી। આનંદનો પાર નહોતો। સવારે ક્યારે સવાર પડે તેની રાહ જોતા હતા। સ્કૂલમાંથી પર્યટનમાં જવાના આનંદની કલ્પના કરતાં કરતાં મને ઊંઘ આવી ગઈ। વહેલી સવારે 4 વાગે એલાર્મ વાગ્યું અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો, રાકેશ ઉઠ, 4 વાગી ગયા। હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો। મનમાં ડર પણ હતો કે ગુરુજી ધમકાવે નહીં। સ્નાન વગેરે પતાવીને સ્કૂલે પહોંચ્યો। બધા સાથીઓ આવી પહોંચ્યા હતા। ગુરુજીએ સૌને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે પર્યટન માટે નીકળી પડ્યા। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित प्रशासकीय शब्दों को पढ़कर समझिए। प्रशासन तो वहीवट, पंजीकरण तो नामांकन, तहसील तो तालुको, समाहर्ता तो कलेक्टर, लिपिक तो कारकुन અને લેખપાલ તો હિસાબનીશ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6 બ।
ऊपर दिए गए प्रशासकीय शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। प्रशासन तो पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। पंजीकरण, सभी बच्चों का पंजीकरण करवाना आवश्यक है। तहसील, तो वाक्य बनशे मेरे तहसील का नाम लाठी है। समाहर्ता, तो यहाँ वाक्य बनशे मैं बड़ा होकर समाहर्ता बनूंगा। त्यार पछी छे लिपिक, समाहर्ता ने लिपिक को फाइल लेकर बुलाया। लेखपाल, हमारे मोहल्ले का सारा हिसाब लेखपाल के पास रहता है। त्यार पछी आगळ इतना कीजिए, अपने संग्रह किए हुए टिकट को यहाँ पर चिपकाઈએ। तो અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જે સંગ્રહ કરેલી છે તે ટિકિટો જે છે તે આપણે અહીંયા લગાડવાની છે। તો આ પ્રમાણે આપણે લગાવી શકીએ। મિત્રો, આપણે ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એક જબરજસ્ત એપ્લિકેશન લોન્ચ કરેલી છે। આ એપ્લિકેશનની અંદર તમે ધોરણ 3 થી 12ના બધા જ વિષયના તમામ પ્રકારના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની પીડીએફનો અભ્યાસ કરી શકો છો। જેમ કે દરેક પાઠની સમજૂતીના સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન, હાલમાં તમે જે અભ્યાસ કરી રહ્યા છો તે સ્વાધ્યાયન પોથી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી, એકમ કસોટીની ઓરિજિનલ પ્રશ્ન બેંક, અસાઇનમેન્ટ, પ્રથમ દ્વિતીય વાર્ષિક પરીક્ષાઓના પ્રશ્નપત્ર અને બીજા તમામ પ્રકારના સોલ્યુશનની પીડીએફ અહીંથી તમે મેળવી શકશો। તો જરૂરથી આ જે એપ્લિકેશન છે તે ડાઉનલોડ કરી લેજો। એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। તમારા દોસ્તો, મિત્રો, સગા સંબંધીઓ દરેક સુધી આ જે એપ્લિકેશન છે તે જરૂરથી શેર કરજો। અને હવે પછી ફરી મળીશું આપણે પાઠ નંબર 2ની સ્વાધ્યાયન પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। તો જરૂરથી આ વિડીયો તમારા દોસ્તો, મિત્રો, સગા સંબંધીઓ સુધી શેર કરજો।